Hello everyone and welcome back to the channel. So guys, we are back with another session for your UPSC CSAT comprehension practice. And as we have been progressing in the previous sessions, I've been helping you out with level 1 passages, level 2 passages. So today we are going to start with level 3 passages, which basically means which have questions 3 or more than 3 questions in them. So today we'll start with simpler passages. You'll see how information is collated from the passage and how do we answer the how do we answer the questions aptly, right? So we'll do that, and then we'll go on and increase the level of level 3 passages in the further session. So without any further ado, let's jump into the session. But guys, if you are a beginner, if you want to know how to prepare for CSAT, we have the best thing available for you. Now this is a comprehensive guidebook which will help you to qualify CSAT exam. So it has everything from strategy to sources and everything you need to understand about every subject that there is in the CSAT exam. So this ebook is for free. The link for this book has been given in the description of the video. You can go and download this book for absolutely free and get benefited from it. So guys, I invite you to get this book and get yourself improve yourself and learn how to evolve with the preparation. So thank you so much. Now let's begin with the passages. So first passage, female polar bears give birth during, okay, so this is the first question. This is a specific question. Then mother bear takes side, and okay, again a specific question. And then which of the following assumptions have been made, and we have to see if which of the following assumptions is right or not wrong. So let's read the passage and let's see what sort of questions are there. So in spring, polar bear. So I think the passage is about polar bear. So in spring, polar bear polar bear mothers emerge from the dens. जो हाइबरनेशन के टाइम पे आपने पता होगा कि पोलर बेयर जो होते हैं वो 6 महीने सोते हैं बिकॉज ऑफ द आइस स्नो कवर, राइट? सो इन स्प्रिंग, जब स्प्रिंग हो जाती है, मतलब सर्दियां जब खत्म हो जाती हैं, जब मौसम खुलता है, तो पोलर बेयर मदर्स इमर्ज फ्रॉम द डेंस विद 3 month old cubs. तो जो पोलर बेयर मदर्स होती हैं वो 3 महीने के बच्चों को लेके बाहर निकलती हैं. द मदर बेयर हैज फास्टेड फॉर एज लॉन्ग एज 8 months, बट दैट डज नॉट स्टॉप द यंग फ्रॉम डिमांडिंग फुल एक्सेस टू हर रिमेनिंग रिजर्व्स. तो वो कह रहे हैं कि भाई माँ ने लगभग 8 महीने यहाँ पे फास्ट किया है, क्योंकि हाइबरनेशन में चले जाते हैं वो लोग जब स्नोफॉल होते हैं, सर्दियाँ होती है, तो 8 महीने से वो फास्टिंग पे थी. लेकिन जो बच्चे हैं उनको फुल खाना चाहिए, बट दैट डज नॉट स्टॉप द यंग फ्रॉम डिमांडिंग फुल एक्सेस टू हर रिमेनिंग रिजर्व्स. इफ देर आर ट्रिपलेट्स, अगर 3 बच्चे हो जाए, द मोस्ट परसिस्टेंट स्टैंड्स टू गेन एन एक्स्ट्रा मील एंड इट मे हैव द मील एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स. तो जो सबसे ताकतवर है, सबसे जिद्दी है, वो ज़्यादा खाना खाता है, दूसरे को खाना नहीं मिलता. द स्मॉलेस्ट ऑफ द लिटर फॉरफीट्स मेनी मील्स टू स्ट्रॉन्गर सिबलिंग्स. हाँ, जो सबसे वीक होता है तीनों में से, उसको अपना खाना, ताकतवर जो भाई या जो भी होता है, उसको देना पड़ता है फैमिली, मतलब बच्चों में. फीमेल्स आर प्रोटेक्टिव ऑफ देयर कब्स बट टेंड टू इग्नोर फैमिली राइवलरी ओवर फूड. कि वैसे तो जो पोलर बेयर्स हैं, मतलब पोलर बेयर मदर्स हैं, वो प्रोटेक्टिव होती है अपनी कब्स की, लेकिन आपस में वो क्या लड़ रहे हैं, क्या झगड़ रहे हैं, उस पर चिंता नहीं करती वो. फिर उसने क्या कहा है? In 21 years of photographing polar bears, I've only once seen the smallest of triplets survive till autumn. तो वो कह रहे हैं कि 21 साल की फोटोग्राफी में मैंने आज तक एक बार ऐसा देखा, 21 सालों में, कि जो ट्रिपलेट्स होते हैं उनमें से जो सबसे छोटा है, ठीक है, वो बच नहीं पाता, ठीक है, क्योंकि खाना उसको नहीं मिलता, जो ताकतवर सिबलिंग्स है वो खा जाते हैं, राइट? सो ये पैसेज है. दिस इज अबाउट ऑब्जर्वेंस ऑफ द पोलर बेयर एंड how the siblings and how the cubs of a polar bear, how they function. So first question is, a female polar bear give birth during summer, spring, summer, autumn या winter. उसने यहाँ पे दिया था शायद पहले सेंटेंस में, इन स्प्रिंग पोलर बेयर मदर्स इमर्ज फ्रॉम द डेंस विद 3 month old cubs. तो 3 महीने का जब कब है वो, जब वो स्प्रिंग में बाहर निकली है, तो इसका मतलब उसने जन्म कब दिया होगा? विंटर्स में, राइट? क्योंकि विंटर के बाद आता है स्प्रिंग, फिर आता है समर और फिर आता है ऑटम. सो दिस इज द सीजन: विंटर, स्प्रिंग, समर, ऑटम, देन विंटर, स्प्रिंग, समर एंड ऑटम. सो स्प्रिंग से पहले क्या आता है? विंटर आती है. सो द राइट आंसर हियर इज विंटर, क्योंकि 3 महीने पहले स्प्रिंग से क्या होता है? विंटर होती है. सो दैट इज वाई द आंसर इज विंटर है. नेक्स्ट, मदर बेयर टेक्स साइड्स ओवर कब्स. वो साइड लेती है? नहीं, वो तो कह रही है कि वो साइड नहीं लेता. लेट्स द मदर बेयर लेट्स द कब
cubs fend for themselves, yes. Feeds only their favorites, नहीं. See that all cubs get an equal share, नहीं. So I think the mother, उसने clearly दिया है, the mother bear lets the cubs fend for themselves, ये देखो दिया उसने. But they tend to ignore family rivalry over food, क्या मतलब वो खाने पे जो rivalry होती है बच्चों में उस पे वो ध्यान नहीं देती. So the mother bear lets the cubs fend for themselves. And third question is, with reference to the passage, the following assumptions have been made. So let's read the assumptions. Polar bears fast as long as 8 months due to non-availability of prey. कि भाई पोलर बेयर्स जो हैं वो लगभग 8 महीने तक खाना नहीं खा पाते ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्रे, क्योंकि उनके पास शिकार करने को कुछ नहीं होता, बिकॉज स्नो पड़ी होती है. एंड पोलर बेयर्स ऑलवेज गिव बर्थ टू ट्रिपलेट्स, नहीं ये गलत है. यहाँ पे ये हमेशा ऑलवेज, ये देखो एक्सट्रीम ऑप्शन होगा हमेशा. उसने बोला कि अगर अगर ट्रिपलेट्स हो जाए तो सबसे छोटा को खाना नहीं मिलता. सो आई थिंक ओनली फर्स्ट अजम्पशन इज करेक्ट, बिकॉज वो लगभग 8 महीने तक उनको फास्ट करना पड़ता है क्योंकि बर्फ गिरी होती है, उनके पास खाने को कुछ नहीं होता. सो दैट इज द राइट अजम्पशन. उन्होंने किया भी हुआ है. द मदर बेयर हैज फास्टेड फॉर एज लॉन्ग एज 8 months, ठीक है, बट दैट डज नॉट स्टॉप द young from demanding full access. So they do usually fast as long as 8 months due to non-availability of prey. So that is the assumption, because देखो snow है, assumption है guys. देखो वहाँ given नहीं है कि अब prey available नहीं है, लेकिन ये assumption है कि भाई 8 महीने खाना क्यों नहीं खाएगा कोई, ठीक है, क्योंकि बर्फ गिरी होती है, बर्फ में बाहर निकलने सब बंद होता है. 10-10 15-15 फुट बर्फ गिरी होती है जहाँ पे डेन में होते हैं, ठीक है, तो वहां से बाहर निकल पाना मुश्किल है, तो फिर प्रे कहाँ से मिलेगा, राइट. तो जब बर्फ पिघलती है तब ये लोग अपनी गुफा से बाहर आते हैं. तो दैट वाज द राइट अजम्पशन. चलो आगे बढ़ते हैं इस नेक्स्ट पैसेज. व्हेन द नाइट फेल ही स्लेप्ट, अगेन कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है. ही सून फेल अस्लीप बिकॉज, ठीक है, एंड विद रेफरेंस टू द पैसेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है. फिर वही 3 क्वेश्चंस हैं. ये बहुत पुराने यूपीएससी पेपर्स में आते थे, ऐसे पैसेजेस आए हैं, ये यूपीएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के ही पैसेजेस हैं गाइस, ठीक है. तो ये मत समझना कि कहीं बाहर से लिए गए हैं, ये यूपीएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम में ही आए हैं किसी न किसी साल में. काफ़ी पहले आए हैं, 2013 या 14 में आए थे, तो ये उस टाइम पे ये पैसेजेस आते थे. तो देखना एक बार गाइस. पैसेज है, ही वॉकड सेवरल माइल्स दैट डे बट कुड नॉट गेट एनीथिंग टू ईट और ड्रिंक एक्सेप्ट सम ड्राई ब्रेड एंड सम वाटर. ही वॉकड सेवरल माइल्स दैट डे, वो बहुत मीलों चला उस दिन, बट कुड नॉट गेट एनीथिंग टू ईट और ड्रिंक, लेकिन उसको खाने पीने को कुछ नहीं मिला सिवाय सिर्फ कुछ सूखी ब्रेड के और कुछ पानी के. विच ही गॉट फ्रॉम द कॉटेजर्स एंड फार्मर्स, जो उसको किसानों से और जो वहाँ पे मतलब जो खेती बाड़ी करते थे उन लोगों से मिले वो ब्रेड और पानी भी उसको. एज नाइट फेल, जैसे ही रात आई, ही स्लेप्ट अंडर अ हेस्टैक, वो एक भूसे के ढेरे के नीचे सो गया. ही स्लेप्ट अंडर अ हेस्टैक लाइंग इन अ मेडो, एक खुले मैदान में. मेडो क्या होता है, खुला मैदान जहाँ पे कोई पेड़ पौधा नहीं है, ठीक है, जहाँ पे फसल कट चुकी है और फसल के गट्ठे बन चुके हैं, तो खुला मैदान को मेडो बोलते हैं. तो ही स्लेप्ट अंडर अ हेस्टैक लाइंग इन अ मेडो. ही फेल्ट फ्राइटेंड एट फर्स्ट, कि शुरू में वो डरा हुआ था. फॉर द विंड ब्लू ऑफली ओवर द एम्प्टी फील्ड्स, कि उसको, क्योंकि जो हवा चल रही थी वो बहुत तेज आवाज करके और बहुत खतरनाक तरीके से खाली मैदानों में चल रही थी, तो शुरू में उसको डर लगा. ही फेल्ट फ्राइटेंड एट फर्स्ट फॉर द विंड ब्लू awfully over the empty fields. He felt cold and hungry. उसको ठंड भी लग रही थी और वो भूखा भी था. And was feeling more lonely than he had ever felt before. और वो इतना अकेला फील कर रहा था जितना उसने आज से पहले कभी फील ना किया हो. He, however, soon fell asleep, being much tired with his long walk. ठीक है, कि वो बहुत लंबी वॉक की वजह से, क्योंकि वो थक चुका था, तो इसलिए वो जल्दी ही सो गया. When he got up next day, he was feeling terribly hungry, so he purchased a loaf of bread with a few coins that he had. और जब अगले सुबह वो उठा तो वो बहुत भूखा था, तो उसने कुछ पैसे जो उसके पास थे, कुछ सिक्के थे, उससे उसने एक ब्रेड का टुकड़ा खरीदा. So this is the story. So let's see के questions क्या है. When the night fell, he slept in the open field, under a pile of dry grass, in a farmer's cottage या under a tree. तो he basically slept under a pile of dry grass. उसने बोला ना, he slept under a haystack. तो haystack is a pile of dry grass. ओपन फील्ड भी था, लेकिन वो किसके नीचे सोया वो उसने बोला है. तो ओपन फील्ड में वो घास के उसके ढेरे के नीचे सोया था. दैट इज द मोर एक्यूरेट आंसर, ठीक है. So that is question number 1. Second question, he soon fell asleep because he was exhausted. He was all alone. He had not slept for days. Yeah, he was very frightened. ये clearly mentioned है, he was exhausted. ये देखो उसने दिया था. He, however, soon fell asleep, being much tired with his long walk. क्योंकि वो बहुत थक चुका था उस दिन, बहुत दूर चलने की वजह से.
So he was exhausted. तो ये है आंसर. And next question, with reference to the passage, consider the following statements. He was walking through the countryside. कि वो गांव के इलाके में चल रहा था. ये तो दिख ही रहा है क्योंकि खुले मैदान है, ब्रेड नहीं मिल रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा है वो किसानों से मिल रहा है. तो आई थिंक ही वॉज वॉकिंग थ्रू कंट्री साइड, शहरों में तो नहीं घूम रहा होगा. द कॉटेजेस एंड फार्मर्स गिव हिम इनफ फूड सो दैट ही कुड स्लीप एट नाइट विदाउट फीलिंग हंग्री. नहीं, उसके पास सिर्फ कुछ ही थोड़ा सा ही खाना मिला उसको और वो भूखा ही सोया था. सो आई थिंक ओनली ऑप्शन वन वॉज करेक्ट. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. सो ऐसे होते हैं गाइज, आपको लेवल 3 पैसेजेस में 3-4 क्वेश्चन मिलते हैं. तो वंस यू रीड देम केयरफुली यू विल बी एबल टू सॉल्व सच पैसेजेस. बट वो टारगेटेड अप्रोच बहुत ज़रूरी होती है. और अगर आपको हमारी टारगेटेड अप्रोच अच्छी लग रही है, सो यू कैन कम जॉइन अस इन आवर कोर्स. दिस इज अ कंप्लीट कोर्स फॉर योर सीसैट प्रिपरेशन. नाउ इन दिस कोर्स वी आर ऑफरिंग यू ओनली 100 hours to make you ready for CSAT exam. Only just 100 hours. That means 1 hour every day. That is it. And then the next 60 days you'll be ready for your CSAT. Now in this course we are providing you all the concept classes for your exam, which includes all the concept notes. Along with that there is a test series where you'll get sectional test for all the subjects. There will be weekly live doubt sessions for with the faculty members, and then we will conduct live revision classes before the exam. You know the faculty members, quants is handled by Vishnu sir. I look after the English part, and Meghna ma'am, she looks after the reasoning part. So if you want to join us in our course, which has comprehensive coverage of your all the previous year questions in the for the last 10 years, right? Solved questions along with many other many other important tips and tricks and content and concept videos which will help you crack this exam without any problem. So the link for this course has been given in the description of the video. You can come and check it out, and if you want to join us, please feel free to do so. And guys, if you have not yet liked the session, don't forget to like it, don't forget to share it. This is the least you can do for someone who's who's helping you for this. So guys, that is it for today. I'll see you again tomorrow in another session. But if you have any doubts, if you have any queries regarding anything, you can call us on this number during the office hours, that is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutab.co.in. So guys, thank you so much. And if you want the PDF of this session, you can find it in our Telegram channel, the link for which has also been given in the description of the video. So thank you so much for once again for your patience, for your receptiveness, and I wish you all the success in your endeavors ahead. Keep on working hard, keep on giving your best, and happy learning to all of you.